let's start. What is first of all the grain cargoes? So grain is not only wheat, it includes all the items: wheat, maize, corn, oats, rye, barley, rice, pulses, and seeds in their processed form, which behave in a similar way to grain in its natural state. Means they can shift like what we know, the corn or the wheat. So all these things which can shift, or rather they can easily shift the moment the ship rolls. So they have included all these products into what we call the grain cargoes. The loading carriage of grain, of course, governed by SOLAS chapter 6 part C. And out of that it is taken out from that only for the details. It is supplemented by what we call the international code for the safe carriage of grain in bulk, or normally short form we call it grain code 1991. And of course this code was written when the grain was predominantly carried on general cargo ships. And I also remember even in India when we were importing, the big ship used to come and then light rage into the smaller ships, general cargo ships, and then to avoid shifting, the precautions were taken by securing the surfaces. Now if you see the hazards, first of all, what are the hazards of grain? The biggest one is the shifting, and that shifting takes place even if the hold may be full, because this cargo has a tendency to settle down. When you load, it looks full, but after sailing with the vibrations, the cargo shifts, settles down, and when it settles down, it creates a sort of void on top, and it gets a space for shifting. So settling and shifting, they are the main hazards. And other minor hazards: contamination, dust explosion, fire, rotting due to ingress of water, and consequent depletion of oxygen or evolution of toxic vapors. So we have to take a lot of precautions. So again, we learn from the past accidents that something happens. I remember sometime this cargo, of course nowadays we are particular, cargoes are sometimes fumigated. So nowadays, of course, they inform you that it is under fumigation, they seal the holes. But if it is not informed and the cargo is fumigated, you can imagine. There has been an accident where long time back, and it happens when the ship is coming to discharge port, we all have a tendency कि चलो यार cargo थोड़ा देख लें, inspection कर लें, देख लें कहीं थोड़ा बहुत पानी के drops गिरे हैं. So you can walk on this grain, कुछ होता नहीं है. So I also carried many times. So normal inspection थी, चलो थोड़ा बहुत hatch खोल के, so used to have inspection. नहीं है, weather भी नहीं है तो अभी hatch रहने दीजिए बंद, light के साथ वो भी ऐसे. But nowadays I will not recommend that. Please check the atmosphere first, and do not enter the hold just for the sake of checking the cargo, and you'll end up into a problem. Now again चलो grain dust तो ships पे काफी कम है, but assured this is again a big hazard where this lot of dust formation and explosion can take place. Now सबसे पहले आपका hazard of shifting. Now compartment may be full when the cargo is loaded, but due to vibration and other movements, the grain settles by 2% of volume. But the moment the space is created, the grain has a tendency to shift. But आजकल if you see with these present bulk carriers, of course we can keep two holds slack, partly loaded, but again if the stability, the calculations permit that. Normal tendency to avoid the shifting is make the holds full. So it may not be possible to have all the holds full, maybe because of the trim, amount of cargo available. So all these factors are taken into account, and then you say that you may have one or two holds which are slack, which are partly filled, and there we have all the calculations that we will see. Now the space allows cargo to move from side to side in conjunction with the rolling and pitching of the vessel. And as the cargo shifts, the vessel lifts to one side,
This shifting of grain is greatest hazard involved in carriage of grain. Now instead of bulk carrier, imagine if you are carrying on a cargo holds of a general cargo ship, how much space, how much distance this cargo has got to shift from port to starboard. So definitely it will create a big list and chances of even ship capsizing very much there. Now why this shifting takes place? Because grain has a low angle of repose, 15 to 18 degree, and this results in it shifting very easily. Now we all have understood what is angle of repose. It gives us a good idea. Lesser the angle of repose, very easily the cargo can shift. Higher the angle of repose, not so easily the cargo can shift. So as soon as the angle between the grain surface and the horizontal exceeds the angle of repose, the grain will shift. So very common. This is again like a trimmed hold, maybe partly filled. So this will need more angle for the vessel to roll as compared to this. This cargo can easily shift. So this is the greatest danger which takes place with the shifting of cargo and creating a list on the ship, and then the stability is affected. So इन्हीं सारी चीज़ों को calculate करने के लिए, to avoid करने के लिए, they have come back with the stability requirements. अब ये heel in very simple terms to understand why this list basically, or normally the term heel is used in the grain code. Actually it is a list which is taking place because due to the shift of the cargo, it's not due to the external forces, but they have been taking this, let's consider this, or let's call it as a heel only. Otherwise do not get confused why it is called heel, because heel is due to the external forces. So they say it's the result of heeling moment. Yes, the weight of cargo shifted through a certain distance in the hold, so W into D. So this creates basically a heeling moment, and now if we can calculate this, it was not possible without the data given by the shipyard, what we call the heeling moments. Now if we total up all the heeling moments which are created in all the holds, so that's the reason the ship will list to one side. Now if we see this total heeling moments in all the ships, it will be equal to basically displacement into the shift in G. And from here you can make out that this shift, or total shift W into D, equal to tan theta. So this angle of heel is inversely proportional to your GM, directly proportional to the heeling moment, and inversely proportional to your GM also. Now if the vessel has got a lesser GM, she will heel more, and if she has got a more GM, naturally the angle of heel will be less. So that comes into picture. The another thing is that how is your GM there? If you have a large GM, the vessel may not shift that much, may not heel that much. So this also is another reason for the calculation of ship stability, that throughout the voyage, not only when you sail from a port, not the departure stability, it is the arrival stability in the port. After all your consumption and everything, where does the vessel stand? How is GM is there? Because the moment we start consuming fuel, freshwater stores, the GM starts becoming less. So the moment starts becoming less, so we know the angle of heel will be more. But anyway, the restriction today is in very simple terms. Even as per the grain code, whatever calculations you do, that you restrict the angle of heel to 12 degrees. The vessel should not heel more than 12 degrees due to the shift of cargo. That is the ultimate aim. That whatever type of ship you have, that your angle of heel should not be greater than 12 degrees due to the shift of the cargo. Then you are within the limits. So that is again done by the calculation. Now this grain stability calculation is in your naval arc. You must have been doing it, that how you calculate and how you see this. But here we will just touch what is this heeling moments are. Now ship is allowed a certain amount of heeling moments known as permissible or allowable heeling moments based on our displacement and kg. Now where this is given, where these heeling moments are given, any idea? Permissible or allowable heeling moments are given where?
Grain reading the booklet. Yeah, grain loading manual जो है, a grain manual what we call, so it is given there, and even I will see if I had that copy from the net, so I'll try to send you. You can go through that book. I don't know, because most of the time if you are not sailing on bulk carrier, you may not have seen this book, so it gives you certain idea that how these grain healing moments are given in this book. Very simple it is, that as per the kg or as per normally the ullage in the hold, whatever your ullage is there. Now when you load cargo, you know up to what height you have loaded, or you can just take the ullage at 1 meter or 1.5, 2 meters is the ullage in the hold. So even from the ullage you can calculate that this will be the shifting moments or the healing moments in particular hold. So it is very easy. Those guys, they have given calculated form में, in a tabular form and in a graphical form also they give you in the grain stability booklet. So now it becomes very easy. अब मैंने holes को full कर दिया. If I have loaded maximum holes are full, even then we take some healing moments they allow, although the hold may be full. Why? Because after settling down there will be some void, चाहे वो 10 सेंटीमीटर हो, हाफ a मीटर हो, कितना भी हो. So उसके accordingly he has already taken into account, so we add up that also. And finally हमारे पास total healing moments आ गए कि yes, with this holes full or partly filled, so I know the total healing moments, and as long as the healing moments are less than the allowable healing moments, the ship will suffer a heel and loss of stability, but within allowable limits. So this has been calculated कि इतने healing moments हैं, less than this allowable, we are okay. So total healing moments are not to exceed the allowable healing moments. अब इसको कम करने के लिए how do we reduce, how we keep these healing moments minimum? तो उसके दो ही ऑप्शन है. One, having maximum number of holes completely filled with grain, and second, restraining or securing the grain surface to prevent shifting. अब एक सिंपल जिसे कहते हैं एक सीमेंट शिप ही है. When will be the healing moments maximum? Healing moments होल्ड में कब मैक्सिमम होंगे? किस हाइट पे मैं कार्गो लोड करूं? If I have a cargo 1 meter in the hold from the tank top, will be maximum, or if I have the cargo right up to 1 meter below the hatch covers, तब मैक्सिमम होंगे. कब मैक्सिमम होंगे इसके हीलिंग मोमेंट? जस्ट कॉमन सेंस. तो जी जैसा आपने बताया था कि एंगल ऑफ रिपोज कम होगा तो फिर अपना ज्यादा शिफ्टिंग के चांसेस है. एंगल ऑफ ये अपना हीलिंग मोमेंट्स बढ़ सकते हैं सर शिफ्टिंग की वजह से. या देखिए मुझे एंगल ऑफ रिपोज तो अगेन जैसे हम अगर ग्रेन की बात करें, इट मे वेरी फ्रॉम 18 to 20. किसी कॉर्न का हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, व्हीट का हो सकता है थोड़ा कम हो, किसी और कार्गो का थोड़ा कम ज़्यादा हो, बट इट विल वेरी से फ्रॉम 18 to 20 डिग्रीज. जिसने इसने ग्रेन कार्गो का, उससे तो मेरे को एक आइडिया मिलता है कि यस द मोमेंट आई रीड, द मोमेंट आई कम टू नो, मैंने कोई भी कोड खोला वहाँ से पता लगे मेरे को एंगल ऑफ रिपोज फॉर दिस कार्गो इज सो मच. So I come to know कि यार 18 to 20 means 20 डिग्री अगर शिप रोल किया तो एक कार्गो शिफ्ट हो जाएगा. इन वेरी सिंपल टर्म्स. अब इफ द एंगल ऑफ व्हील इज 60 degrees, आई नो ले लीजिए कुछ भी है, vessel is not going to roll to 60 degrees. That means very less chances for this cargo to shift. अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कार्गो लोड किया है, एग्जाम्पल मैंने ग्रेन लोड की है, तो इसके हीलिंग मोमेंट्स होल्ड में कब मैक्सिमम हो सकते हैं? जब मेरा होल्ड से नीचे से 1 मीटर साउंडिंग तक, मैंने 1 मीटर तक या 2 मीटर तक होल्ड को लोड किया तब मैक्सिमम होंगे, या ऊपर से मेरा होल्ड जो है 1 या 2 मीटर खाली है, मैंने उसको 20 मीटर का होल्ड है, 18 मीटर तक मैंने कार्गो लोड कर दिया, 2 मीटर खाली है, तब हीलिंग मोमेंट ज्यादा होंगे, या जब खाली कार्गो ही थोड़ा सा है, ओनली 2 मीटर ही टैंक टॉप के ऊपर है? सर 2 मीटर जब खाली जब भरा हुआ है मतलब ऊपर तक भरा है तब तो कम हो गया. प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू सर. तो ऊपर से जब होगा ना 2 मीटर, तब से वो सेटलिंग होगे और मतलब हो जाएगा स्पेस, तो वहां पे शिफ्टिंग के चांसेस ज्यादा होंगे. करेक्ट. अब देखिए एक सिंपल है कि अगर हम देखें भी तो मैक्सिमम आपके हीलिंग मोमेंट्स आएंगे जब मेरा हैच जो है हाफ हाइट पे आता है,
हाफ फुल होगा, नहीं, जब वो हाफ फुल होगा, अब ग्रेन के पास स्पेस भी इनफ है, हाइट भी आपने दे दी, कार्गो भी है जो शिफ्ट कर सकता है। इमेजिन मैंने 1 मीटर ही लोड किया, टैंक टॉप के ऊपर 1 मीटर है। अब उस कार्गो को आप अगर रोल भी करो तो हार्डली एनी अमाउंट ऑफ कार्गो विच हैज अ टेंडेंसी टू शिफ्ट। अब जब आपने उसको मैक्सिमम ऊपर तक ले गए, उसे 18 मीटर ले गए हो, नाउ यू नो दैट कि मेरे जो होल्ड्स हैं वो सेल्फ ट्रिमिंग टाइप है, ऊपर तो उसके विंग टैंक्स आ जाते हैं, तो कार्गो को विंग टैंक्स वैसे ही नहीं शिफ्ट करने थे। हाफ हाइट पे जो आप देखिए, देयर इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस दिस कार्गो हैज गॉट अ शिफ्टिंग। अगर वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, इट हैज गॉट अ मैक्सिमम ब्रेड्थ टू शिफ्ट। उसके मैक्सिमम होंगे कि जब आपका होल्ड जो है पार्टली फिल्ड है, मैं उसको और ऊपर लोड करता हूँ, हीलिंग मोमेंट्स कम होते जाएंगे, बिकॉज उसको उतनी स्पेस, उतना डिस्टेंस कम मिलेगा शिफ्ट करने के लिए। चलो वी विल सी दिस। अगर बाई चांस देखता हूँ, मैंने एक आधी स्लाइड लगाई थी जस्ट टू गिव यू हीलिंग मोमेंट्स जो हैं आपके कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज करते हैं। सो एनीवे द मेन थिंग इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू कीप दिस हीलिंग मोमेंट्स मिनिमम। कैसे? या तो मैं होल्ड्स को फिल अप कर दूं टोटल, उसका मैंने बताया पॉसिबिलिटी, ट्रिम, सारे होल्ड में फुल कर दूं, हो सकता है शी में गो डाउन बाय हेड, वो भी नहीं ठीक है, तो मेरे को आगे से कहीं ना कहीं होल्ड को खाली रखना पड़ेगा। एंड सेकेंड, रिस्ट्रेनिंग और सिक्योरिंग द ग्रेन सरफेस। अब ये कार्य आपका आ गया सिक्योरिंग में, जो आपने पढ़ी भी होगी, उसको भी हम दोबारा से देखेंगे यार, व्हाट आर द वेरियस सिक्योरिंग मेथड्स ऑफ दिस ग्रेन सरफेसेस, को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल है कि सिक्योरिंग का मेरे मन में आता है कि व्हेनेवर दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन फॉर इन योर एग्जाम्स दैट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सेकेंड सिक्योरिंग एज अ चीओ। सर अल्टीमेट मेरी यही जॉब है कि सबसे पहले तो ये सोल्ड प्रेपरेशन दैट वी हैव स्टडीड इनफ, सेकेंड अगर मैंने ग्रेन लोड करना है तो मैं उसके हीलिंग मोमेंट्स को कम कैसे रखूं, तो इसके लिए कि ठीक है, या तो होल्ड्स को फुल कर लो, उसका स्टेबिलिटी रूल क्या कहता है, रेगुलेशंस क्या कहते हैं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी विद द फुली लोडेड विद ग्रेन। एंड सेकेंड कि अगर पार्टली फिल्ड है या फिल्ड है तो उसके आप उसको सिक्योर कैसे करोगे उसके सर्फेसिस को। तीसरा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके उसमें है ही नहीं। अब प्लानिंग ऑफ लोडिंग हम कैसे करते हैं कि यस, कैलकुलेट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी लोडेड, टेक इनटू अकाउंट द शिप्स डेड वेट, लोड लाइन जोन, आगे भी ओके, आई कैन लोड 50,000 60,000 टन, जो भी आपने सब माइनस करके डेड वेट निकाल लिया। नाउ डिस्ट्रीब्यूट दिस कार्गो इनटू द होल्ड्स सो एज टू हैव maximum number of filled holds considering required draft trim stresses. That's what we will do. Indicator पे आप बैठोगे तो you start filling up कि हाँ भाई 100% में जाता हूँ कितना, ठीक है, it is a lighter cargo, voluminous cargo है, and then from the stowage factor get the volume depth of cargo in each hold, वो भी हम निकाल सकते हैं। आपने टनेज निकाली कि इतने टन्स डालना है, तो उसकी हाइट भी आ जाएगी आपके पास कि भाई इतनी हाइट तक ये आएगा। सपोज द होल्ड इज पार्टली फिल्ड, सो आई कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑल्सो, और द ऊपर से एम्प्टी स्पेस 1 मीटर कितनी है। Now from the healing moment diagrams in the grain loading booklet we find out the volumetric healing moments for each hold. ये सिंपल है बाय अलेज ऑल्सो, 1 मीटर की अलेज है तो हीलिंग मोमेंट कितने होंगे, multiply this volumetric by appropriate factor to compensate for vertical shift। अब ओनली ट्रांसफर शिफ्ट ही नहीं है, वर्टिकल भी होती है, बिकॉज एक पूरा का पूरा वेज जो है इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो यहाँ से तो ये पूरा जितना भी कार्गो है शिफ्ट होके नेचुरली इट इज मेकिंग अ पाइल ऑन द अदर साइड, सो देयर इज अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ जी ऑल्सो। एंड डिवाइड दिस करेक्टेड VHM बाय स्टोवेज फैक्टर टू ऑब्टेन द वेट हीलिंग मोमेंट्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो दैट्स व्हाई द वेट हीलिंग मोमेंट्स आर नॉट गिवन टू यू, वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट्स आर गिवन बिकॉज द स्टोरेज फैक्टर फॉर कार्गो कैन वेरी। So उसके वेट हीलिंग मोमेंट्स वी कैन कैलकुलेट बाय द स्टोरेज फैक्टर by dividing the volumetric healing moments by the storage factor. We all know 1.25, 1.35 जो भी storage factor, and then add up all these healing moments for each hole to obtain the total healing moments. Then compare with the allowable which is given in the book as per your kg. This is the allowable healing moments. If they are more, go back, not okay. If the total healing moments are coming less then the allowable, then everything is okay, then you calculate your
GM, your area under the curve, सारा आजकल लोड इंडिकेटर में. So this is basically a simple procedure that you do, and then इसकी एक कॉपी हो सर्वेयर इंस्पेक्टर जो भी है वो आपसे ले जाएंगे कि भैया ठीक है, उनके रिकॉर्ड के लिए भी, गॉड फॉरबिड टुमारो एनीथिंग हैपेंस टू द शिप, वी शिप सेल्ड इन अ परफेक्टली गुड कंडीशन and within with a good stability. अब ये जो कोड था आपका, as I told you, was written when the grain was predominantly carried on board general cargo vessels. वहाँ पे इसकी securing जो थी was more tedious. चलो उस वक्त मैन पावर was not expensive, so we could do this because it's a food. All over the world requirement तो इसकी थी. No country is dependent, no country is self sufficient where the grain is concerned or the wheat is concerned. However, आज के जो ships हैं, they have been designed in such a way that they can take good care of this shifting, कि आपको securing की जरूरत नहीं पड़ती bulk carriers. So ships are designed like that. You got the wing tanks and down you got the hopper side tanks, so जिससे आपकी shifting और shift of G जो है वो reduce हो जाती. BLU कोड भी हमने पढ़ लिया, loading and discharging के precautions, communication with the terminal. Now अब grain loading booklet, इसके अंदर क्या क्या दिया होता है, चलो in case if you have seen the book or if I have opportunity I'll send you, but basically question अगर आता भी है कि what are the contents of grain loading booklet, stability booklet I think all of you have seen. So ये उससे थोड़ी सी ही अलग है कि इसके अंदर थोड़ा additional data दिया हुआ है. कौन सा, above calculations would not be possible without the volumetric healing moment being provided to the ship. अब ये तो naval arcs ने calculate करके देना. So all this information must be provided by shipyard and should include curves or tables of volumes, vertical centers of volumes, assumed volumetric healing moments for every compartment, kg wise, displacement wise, height wise. So they calculate and they give us curves or tables of maximum permissible healing moments, allowable healing moments for the various displacements. Yeah, it looks like this. आपका जो grain healing moments हैं, if you see this, this is the, either you go as per the height of cargo. Height of cargo 0, ullage maximum हो जाएगी. So this hold is say 18 meters. Volume shift is again 0 when there is no cargo. अब अगर height थोड़ी सी है, you have loaded only cargo up to say even 1 meter. अगर हम 1 meter भी देखें, so 17 meter is the ullage, 18 meter का hold है, and then your volumetric healing moments becoming shifting moments 5000, 330. ये सारे अगेंस्ट आपकी VCG LCG भी जो है, इस सारी की सारी कार्गो की आपको कैलकुलेट करके दी हो. So they keep on increasing as your height keeps on increasing with the cargo. 1, 2, 3, 4. So you see this, it is increasing, and I think it will go maximum up to when the hold is almost say half filled, and then it will again start reducing when your ullage starts becoming say 0 or 1 meter. Then also you will find these shifting moments start reducing. चलो ये तो है. Now this is given for various kgs of the ship. As per the kg, if you know the kg, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो. That is the allowable ones. Details of scantlings of temporary fittings provided to meet stability requirements. तो सारी की सारी फिटिंग जो हैं, dunnage, wires, size, हर चीज़ का किस किस चीज़ का size है, very minute details also they were given in the booklet. Okay, suppose if I have to secure the grain, saucering, bundling, strapping जो भी है, उसकी सब की जो है, it is not left up to any doubt. वो भी सब उन्होंने कैलकुलेशन से ही कि कितने साइज की वायर यूज करनी है, क्लिप्स, टर्न बकल्स, डनेज, जो भी शिफ्टिंग बोर्ड्स, सब की आपको इसके अंदर मिल जाएगी. नथिंग टू वरी. वर्कड एग्जांपल भी दिया फॉर गाइडेंस, जैसे हमारे स्टेबिलिटी बुकलेट में कंडीशंस दी होती हैं. तो हियर आल्सो you have worked out conditions with typical different stowage factors, that your what is just stability condition with this. So it is not a difficult job at all. हाँ, बट एग्जाम के लिए थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ यार, हाउ टू डू दिस. जो आप ग्राफ भी बनाते हो, कैलकुलेशन करते हो,
बट ऑन द शिप इन द बुकलेट एवरीथिंग इज गिवन, प्लस हमारे पास फास्टेस्ट कैलकुलेटर है लोडिकेटर, वो भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। एडिशनली नॉर्मल स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन वो भी इस बुक में दे देते हैं। एडिशनल सेफ्टी इंफॉर्मेशन क्या, स्टेबिलिटी की पर्टिकुलर लाइट शिप, वेट, केजी, टेबल ऑफ लिक्विड फ्री सरफेसेस, कैपेसिटीज, तो ये सारा कुछ आपका ग्रेन लोडिंग बुकलेट में। ऑफ एंड इफ समबडी आस्क वेदर इन रिटर्न और ओरल कि ग्रेन स्टेबिलिटी ठीक है, आपने चाहे शिप पे काम किया नहीं है, ठीक है सर आई हैव हैड अ लुक और मैंने ये डेटा ग्रेन लोडिंग बुकलेट में है, विच इज दैट्स ऑल आई नीड। बेसिकली यहाँ से मेरे को वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट ही चाहिए फॉर पर्टिकुलर हलेज और हाइट के लिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन इवन इन द स्टेबिलिटी बुकलेट ऑल्सो। अब नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन। अब ये इफ यू आस्क मी टुडे ऑल द शिप्स आर हैविंग दिस डॉक्यूमेंट इन, अब उसके नाम उन्होंने बदल दिए। अब यहाँ पे इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन, IMDG IMS BC में से कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, केमिकल कैरियर, गैस कैरियर, COF, but main thing the item is the particulars, the things are basically same. The document of authorization means कि somebody has to see कि यार ये जो ship है, is she fit to carry this cargo as per the grain code, simple. Whatever they have mentioned that your ship, चाहे वो stability हो, चाहे उसकी fittings हो, चाहे उसके अंदर equipment हो, हर जगह वही है, चाहे आप COF ले लीजिए, चाहे वो DOC ले लीजिए, कि यार ये चीज़ उसमें होनी चाहिए। एंड जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि भाई दिस इज नॉट अलाउड एंड वेयर ऑल यू कैन लोड, वेयर ऑल यू कैन नॉट लोड। सो इफ यू आस्क मी, इसमें सर लिस्ट होती होगी व्हिच शिप कैन कैरी ना, लिस्ट ऑफ कार्गोस। या बेसिकली इफ यू सी कि इफ यू आस्क मी द एनी शिप कैन कैरी क्यों नहीं है, अब उसमें जो ग्रेन कोड में वो कहता है कि ठीक है मेरा शिप है, बट वो कहता है कि व्हेन यू हैव टू कैरी ग्रेन देन यू हैव टू अप्लाई विद द ग्रेन कोड। ठीक है जी, अब ग्रेन कोड के अंदर क्या है, जैसे हमने सिंपल कह दिया कि हमने उसकी शिफ्टिंग को है कि मेरा शिप का डिज़ाइन कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया राइट फ्रॉम जनरल कार्गो शिप टू बार्जीज टू दिस सेल्फ ट्रिमिंग बल्क कैरियर्स, इवन टैंकर्स, यू कैन कैरी ग्रेन। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है सिर्फ कि एक तो स्टेबिलिटी कैलकुलेशन, सेकंड शिफ्टिंग। एज लॉन्ग एज आई कैन सेटिस्फाई द एडमिनिस्ट्रेशन दैट आई हैव रेस्ट्रेंट, मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कार्गो कैन नॉट शिफ्ट, दीज आर द ओनली थिंग्स विच वी हैव टू कंप्लाई। अगर आज टैंकर्स में भी देख लीजिए, इवन टैंकर्स में भी ग्रेन कैरी करना कौन सा मुश्किल है। हाँ वो सफाई उसका ना पूछिए कि हाँ क्लीनिंग इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, और लोडिंग डिस्चार्जिंग इज थ्रू द शूट, सक्शन भी उसने उसी तरह से करनी। हाँ उसके बाद हम कहेंगे कि यस इट इज फॉर द शिप ओनर की अगर आपने एक बार ठीक है आपका टैंकर बिल्टअप नया आया, साफ है, बिल्कुल है, इंस्पेक्शन वो करेंगे, ठीक है लोड कर सकते हैं। और उसके बाद उसको साफ करने के लिए वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है 40 बंदे ही डालने अंदर विद वेंटिलेशन और सफाई कर देंगे बिल्कुल। तो ऐसा कोई वो नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कंप्लाई विथ। सो ये डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन यही आपको सर्टिफाई करता है द शिप इज कैपेबल ऑफ लोडिंग ग्रेन इन अकॉर्डेंस विद द ग्रेन कोड। एंड अगेन इट इज कि विदाउट दिस नहीं, ये नहीं है कि मर्जी से, बिकॉज द पीपल, अब सबसे पहली चीज तो यही है कि यार मेरे पास ग्रेन लोडिंग बुकलेट है कि नहीं है। अब जो पहले शिप्स थे लाइक जनरल कार्गो शिप्स थे, देयर वाज नो, तो नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ये ग्रेन लोडिंग बुकलेट टाइप की चीज ही नहीं थी, वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट्स कैलकुलेशन चीज ही नहीं थी उस, तो उसको क्या किया जाता, यही था कि भाई एज अ जनरल लाइक अ बल्क कार्गो, यहाँ भी बल्क कार्गो करना है, इसकी शिफ्टिंग है उसको कैसे रोकें। शिफ्टिंग का एक सिंपल एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ गोइंग इवन डिटेल, उसमें भी एक मेथड है कि ठीक है यार मैं अपने कार्गो होल्ड को लोड करता हूँ, चाहे लोअर होल्ड को लोड करता हूँ, चाहे ट्विन डेक में लोड करता हूँ, उसके ऊपर 1 मीटर तक मैं वही कार्गो बैग में डाल के ओवर स्टोर कर देता हूँ। अगर मैं ग्रेन कार्गो को किसी भी दूसरे कार्गो से ओवर स्टोर करता हूँ, ग्रेन कार्गो कैन यू, डू यू थिंक ग्रेन कार्गो कैन शिफ्ट, कहाँ से शिफ्ट करेगा। दिस वाज द सिंपल मेथड, बट वहां पे प्रॉब्लम दूसरी थी कि यस कॉस्ट, मैन पावर, लेबर रिक्वायर्ड।
आज भी आपने लॉट ऑफ यू मस्ट हैव सीन जो एग्रीकल्चर बेल्ट से हैं या वैसे भी आजकल किसी भी जगह ग्रेन के सीजन में आपने देखा है वो बैग्स भरना शुरू कर देते हैं। आजकल मशीन है, उससे बैग भरे, स्टिच किया, ट्रक पे लोड कर देते। सेम थिंग शिप्स में था कि ठीक है यार आप भर दीजिए, ऊपर का 1-1.5 मीटर छोड़ दो, उसके ऊपर में वही ग्रेन जो है बैग्स में भर के उसको 2 या 3 लेयर जो है बैग्स की डाल दो, राइट फ्रॉम पोर्ट टू स्टारबोर्ड एक्सट्रीम तक। अब ये बैग तो शिफ्ट होंगे नहीं, बैग तो बिल्कुल नहीं शिफ्ट हो सकते। सेटल भी होते हैं तो ये बैग भी उसी के साथ कार्गो के साथ नीचे जाएंगे, उसको शिफ्ट ही नहीं होने देंगे। एंड उसका स्टेबिलिटी तो मैंने कैलकुलेट की, नीचे ही कार्गो ज़्यादा है मेरा, पॉजिटिव जीएम ऑल द टाइम। तो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो हमारी जो ग्रेन कोड था, अब उससे पहले था कि शिप्स हैं कि यहाँ पैसा बचाने के लिए कि हाँ यार बैग की कॉस्ट है, हाँ जी ऐसे लोड कर दो, उसके बाद उसको लेके चलो। देन द शिप्स मस्ट हैव गॉन डाउन। देन दे केम बैक कि नहीं भाई ग्रेन कोड अब तो ये कंपलसरी हो गया कि नहीं भैया, यू कैन नॉट लोड बिकॉज दे डोंट वांट टू पुट द शिप एट रिस्क। यही आपका डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन बोलता है, इट इज एक्सेप्टेड एज एविडेंस द शिप इज कैपेबल ऑफ कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स and it shall be accepted as evidence that the ship is capable of complying with the requirements of these regulations, and this document will accompany or incorporated into the grain loading manual। कि भैया वो भी है आपके पास, ऑथराइजेशन भी है, नो प्रॉब्लम, आई कैन लोड। अब प्रॉब्लम आ जाती है विदाउट डीओए। अब जैसे मैंने कहा कि पहले भी तो शिप्स लोड करते थे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन ना लोडिंग मैनुअल था, ना कुछ, ना ग्रेन लोडिंग मैनुअल था, ना ये डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन। नो यहाँ पे उसने कह दिया भी ठीक है, अगर आपके पास डीओए नहीं है दैट मीन्स आपके पास ग्रेन लोडिंग बुकलेट नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन लोड प्रोवाइडेड यू कैन सेटिस्फाई द एडमिनिस्ट्रेशन, द लोकल बॉडी जो है उसको आप, उनके पास पावर है, दे कैन डिसाइड एनीथिंग। समटाइम इवन द शिप इज लाइक, जैसे मैंने आपको बताया लाइट रेज के लिए, अब आपने बिगर शिप से लाइट रेज स्मॉल कार्गो शिप में किया ना, यू आर हार्डली गोइंग इनटू से 4 और 5 नॉटिकल माइल्स और इन वेरी, जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स। अब अपना गल्फ ऑफ कच्छ ही ले लीजिए, सिक्का सलाया टाइप ले लीजिए। अब वहां पे वेदर, वर्स्ट वेदर क्या मानसून में ही होता है। इवन मानसून वी डू एसटीएस ऑपरेशन देयर ऑयल का। अब उस टाइप के एरिया में अगर मैं ग्रेन का वो करता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन, हमारा डीजी शिपिंग जैसे सर्वेयर्स हैं, तो दीज पीपल कैन गो एंड डिसाइड कि ठीक है यार शिप ने 8-10 किलो नॉटिकल माइल यहाँ से अंदर जाना है, वहाँ पे जाके जेटी पे डिस्चार्ज कर देना, वेदर इज काम। तो वहाँ पे वो कुछ भी उसको वेव ऑफ कर सकते, ठीक है यार सिक्योरिंग की कोई ज़रूरत नहीं, आप कूल कर लीजिए, उसको कर दीजिए बिकॉज वेदर एवरीथिंग इज गुड। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। बट यहाँ पे वो कहता है कि यस इफ़ यू आर विदाउट डीओए तब आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, थोड़ी सी अलग है, दैट वी विल सी। स्टेबिलिटी जब पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी के उसमें आएंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। 3-4 पॉइंट हैं कि कार्गो यू कैन नॉट लोड मोर देन 1/3 ऑफ द डेड वेट। अगर मेरे पास डीओए नहीं भी है तो फिर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया भी आपने कार्गो जो है इससे ज़्यादा नहीं उठाना। एंड देन ट्रिमिंग, सिक्योरिंग, दैट्स ऑल। अगर आपके पास डीओए है फिर थोड़ी टर्म कंडीशन ईज ऑफ हो जाती है। अब इसकी एप्लीकेशन, इट इज अप्लाइज टू ऑल द शिप्स रिगार्डलेस ऑफ साइज इंक्लूडिंग दोज लेस देन 5 GRT। चाहे आप बार्ज में कर रहे हो, किसी में कर रहे हो, तो इसके अंदर हर चीज़ के लिए उसने रूल रेगुलेशन लिखे हैं कि हाँ भाई द आइडिया इज शिप शुड नॉट बी एंडेंजर्ड व्हेन द कार्गो शिफ्ट टेक्स प्लेस। कंपल्सरी, इफेक्टिव फ्रॉम January 94। अब देयर इज फ्यू टर्मिनोलॉजी, फ्यू समटाइम इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अब ऑफ कोर्स व्हेन दे यूज दिस टर्मिनोलॉजी, अगर मैंने ग्रेन कोड पढ़ना ही है, बुक पढ़नी है, तो अगेन एंड अगेन दे विल राइट दिस थिंग कि यार फील्ड कंपार्टमेंट ट्रिम या फील्ड कंपार्टमेंट अनट्रिम्ड, ये क्या चीज़ होती है। तो उसी को समझना एंड वापस उसको लिखना वेरी इजी। फील्ड कंपार्टमेंट ट्रिम्ड is one in which the grain after loading is trimmed so as to fill all spaces under the decks and hatch covers to the maximum extent possible। That means कि आपने होल्ड तो फुल कर लिया। Now you can imagine
जस्ट इमेजिन योर कार्गो शिप के होल्ड जो हैं, नॉट दिस बल्क कैरियर वाले, उनमें तो जरूरत पड़ती नहीं बिकॉज दे आर सेल्फ ट्रिमिंग, उनके तो विंग टैंक्स हैं। और दूसरा इमेजिन द कार्गो शिप है जिसके अंदर अंडर डेक एरिया काफी आ जाता है। अगर हम उसको देखें तो यस व्हाट हैपेंस की दिस इज योर नॉर्मल कार्गो शिप, आपकी हैच ओपनिंग, एंड ये आपका अंडर डेक एरिया रहता है। अगर मैं यहाँ ग्रेन लोड करता हूँ, अगर मैं कुछ नहीं इसको करता, ट्रिम नहीं करता, तो ग्रेन यहाँ से अपना नेचुरली इसी स्लोप पे जाएगी, तो ये सारी की सारी, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल खाली रह जाएगा। यहाँ पे तो ग्रेन जा नहीं सकती बिकॉज आर लोडिंग इट विल जस्ट स्लाइड एज पर इट्स ओन एंगल ऑफ रिपोज, तो यहाँ से इतने डिग्री पे जाके अब ये सारी स्पेस खाली रही, तो दिस इज अगेन अ डेंजर। फाइनली जब शिफ्ट चलेगा तो एक कार्गो जो है शिफ्ट होता जाएगा और आपकी वाइड बनती जाएगी। अब फिल्ड कंपार्टमेंट ट्रिम्ड मीन्स कि जब मैं यहाँ तक पहुँच गया देन वी ट्राई टू शवल इट मैनुअली, या फिर आजकल तो ऑफ कोर्स लोडर्स हैं जो किसी तरह से भी आप उसको यहाँ पे ग्रेन को डायरेक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली दिस यूज्ड टू बी डन मैनुअली, कि यहाँ पहुँचा भी, चलो पूरा का पूरा ग्रेन को जितना आप मैक्सिमम अंदर डाल सकते हो, स्टिल देयर विल बी सम स्पेस, बस ये तो है नहीं बंदों ने यहाँ तक भर दिया तो बाहर कैसे आएंगे अंडर डेक, अंडर द कोमिंग। सो दिस इज दिस द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, कि जितना आप इसको मैनुअली भर सकते हो, एंड देन यू लोड दिस कंपार्टमेंट बिकम्स फिल्ड कंपार्टमेंट। Now filled compartment untrimmed means refers to a cargo space which is filled to maximum extent possible in way of the hatch opening, but outside the periphery of the hatch opening the grain will be at its natural angle of repose. अब ये कैसा दिखेगा कि भैया I have nothing, no man power and straight हमने लोड किया एंड ये कार्गो ऐसे का ऐसा दिख रहा है। यहाँ तो आपको फुल दिखेगा और अंदर यहाँ पे ये कार्गो, ये स्पेसेस जो है खाली रहेंगी। So this type of compartment we call it untrimmed, filled compartment untrimmed. So this is the terminology they use. The grain surface in all compartment must be trimmed except in following cases. अब इन cases में उसने क्या किया कि sometime they found it was difficult. अब किसी के बारे में भी आएगा, they made a main deck पे मैनुअल बना दीजिए, इसको फिलअप ही करना है, मैनुअल बना दीजिए और यहाँ पे यहाँ से अपने शूट के साथ यहाँ से ग्रेन लोड कर दीजिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी थी। उसने कहा ठीक है मैनुअल्स कैन बी मेड ऑन द मेन डेक पे, कोई वो नहीं है, बाद में हम इसको मैनुअल को टाइट कर देते। तो इन दोज केसेस देन दिस कंपार्टमेंट आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज फिल्ड एंड ट्रिम्ड। ट्रिमिंग हमने मैकेनिकली कर दी कि ठीक है सीधा यहीं पे कार्गो लोड कर दिया। अब स्पेशली सूटेबल कंपार्टमेंट, और स्पेशली सूटेबल कंपार्टमेंट जैसे मैंने बताया आपके आज के बल्क कैरियर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द स्पेशली सूटेबल। या तो आप सेंट्रलाइन बल्कहेड्स हो, जैसे आपके टैंकर्स पे होते हैं कि पोर्ट स्टार्बोर्ड सेंटर। सर हाँ जी सर, तो जैसा आपने बताया कि ये साइड में मैनहोल्स होते हैं फिलअप करने के लिए, ऐसे जो साइड से सकते हैं विंग से, या ये देखो ये लाइक दिस मैनुअल्स। अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे है, सपोज आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपार्टमेंट, मैं यहाँ मैनुअल है, यहाँ से इस कंपार्टमेंट को भर देता हूँ, यहाँ इसको सीधा भर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैनुअल से भर देता हूँ। तो दिस इज अगेन वी कॉल स्पेशली सूटेबल। तो ये सब पुराना जमाना था उस टाइम में। आज नाउ यू आर कंपेयरिंग टुडेज शिप्स कि यार ऐसा कैसा होगा। ये जो आज हम शिप्स देख रहे हैं जो बल्क कैरियर विद दिस सेल्फ ट्रिमिंग, यहाँ पे नीचे हॉपर साइड टैंक्स हैं, तो यहाँ पे कार्गो जो है नेचुरली अगर आप देखिए दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट नॉट लेस देन 30 डिग्री। अब यहाँ पे कार्गो शिफ्ट हो ही नहीं सकता बिकॉज ये प्लेटिंग रोक लेगी इधर। यहाँ तक मैंने अगर कार्गो लोड किया तो कार्गो को शिफ्टिंग का चांसेस ही कम है। सिमिलरली उससे पहले उन्होंने इवन समटाइम यूज्ड टू पुट दिस मैनुअल लॉन्गिट्यूडनल बल्कहेड जिसे कहते हैं, फॉर एंड आफ्ट बल्कहेड पे उनको नट बोल्ट के साथ आप लगा दीजिए। बेसिकली करना क्या है, इट्स लाइक उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि ग्रेन शिफ्ट ना हो। सूटेबल कंपार्टमेंट को कहता है वन विच हैज एटलीस्ट 2 वर्टिकल और स्लोपिंग लॉन्गिट्यूडनल ग्रेन टाइट बल्कहेड्स coincident with the hatch side girder or so position as to limit the transverse shift of grain.
If sloping, the division shall be inclined at greater than 30 degree to the horizontal. Specially suitable ships include bulk carriers with wing tanks forming self-trimming hatches or oboes, tankers with longitudinal divisions. और टैंकर का क्या ऐसे ही होता है, पोर्ट स्टार्बोर्ड सेंटर, isn't it? So these are the basically specially suitable compartment. तब भी उन्होंने स्टडी किया कि ठीक है इसमें ग्रेन कहीं नहीं जा सकते, नो नीड कि आप इसकी बंडलिंग लैशिंग ये कुछ करो, कितना भी शिप रोल करेगा है ही नहीं, ग्रेन के पास स्पेस ही नहीं है, इसमें कितना शिफ्ट कर लेगा, इसमें कितना शिफ्ट कर लेगा। हाँ बट अगर यहाँ से यहाँ तक स्पेस अवेलेबल है देन दिस lot of amount of weight can go to this side and in all the holes. That was the only danger. Partly filled compartment, you know कि भैया इतना ही कार्गो था ट्रिमिंग के लिए जिसके लिए भी, so this is called the partly filled compartment. चलो एंगल ऑफ लोडिंग। अब आपकी होल्ड प्रेपरेशन, अब हमने इसके ऊपर तो काफ़ी डिस्कस कर लिया, होल्ड प्रेपरेशन या चाहे बल्क कैरियर किया, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग। इन एडिशन अब यहाँ पे सिर्फ हमें और क्या केयरफुल करना है कि ठीक है हमने साफ सफाई सब कुछ कर लिया है, तो होल्ड क्लीनिंग प्रिपरेशन ऑफ होल्ड्स फॉर डेक्स कैरेज ऑफ ग्रेन मस्ट बी सिमिलर टू होल्ड क्लीनिंग ऑफ बल्क कार्गोस विच मच मोर स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस। कि बाकी सारे फैक्टर तो आप वही लिख सकते हो, 18-20 जो पॉइंट्स हैं, लाइटिंग, वेंटिलेशन, जो भी आप चेक करोगे, बिल्जेस वगैरह, तो इसमें भी साफ करनी है। अब यहाँ पे थोड़ी क्लीनलीनेस, जैसे हमने कहा ग्रेन क्लीन, अब ग्रेन क्लीन क्या है कि इट इज अ फूड ग्रेन कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। अब हमारे होल्ड है एंड जितने भी मैक्सिमम सर्वेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स, मोस्ट ऑफ दीज सर्वेयर्स दे नो, दे आर वेरी कंसिडरेट दैट दे नो दैट कि शिप हैज डन इनफ एफर्ट्स कि भाई इससे ज़्यादा सफाई नहीं हो सकती थी, प्लस उसको सिर्फ लूज रस्ट नहीं दिखनी चाहिए जो कार्गो में मिक्स होके, इट शुड नॉट हार्म द product, that's all. No foul smell must remain in the holds and the bilges must be very dry. When you are carrying grain after grain like these lakers, अब you can imagine अगर थोड़ी सी भी ग्रेन कहीं कोने में या बिल्ज में पानी में पड़ी हुई है, you can see the stink it gives. स्मेल आपने देखी होगी, it stinks very badly. तो ग्रेन के बाद भी ग्रेन के होल्ड को साफ करना इज अ टफ जॉब, क्योंकि अब वॉशिंग तो हम कर रहे हैं, तो कहीं कोने में भी थोड़ी सी भी ग्रेन रही, उसके ऊपर पानी है, वो जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन टाइप, और वो स्मेल देगी, वो चीज़ वो देखना चाहते हैं कि आपके होल्ड में कोई ऐसी स्मेल तो नहीं है प्रीवियस कार्गो की या कुछ चीज़ तो नहीं। अगर आपने अच्छा वेंटिलेट करके रखा है, गुड। Hold ventilation must be functional. Hatch cover, water tightness, as I told you. Hatch covers की water tightness and securing arrangements इन कार्गो के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पानी गया तो नॉट ओनली कार्गो तो स्पॉइल होगा, वो एक्सपैंड भी करेगा, उससे कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो थॉरो चेक फॉर इंसेक्ट और rodent infestation should be made. अब वंस इन अ व्हाइल यू आर कैरिंग ग्रेन तब तो ठीक है, बट यू आर रेगुलरली कैरिंग तो यू नो ग्रेन है, उसके ऊपर चूहे तो आएंगे। एंड हमने जाना कौन सी जेटीज पे लोडिंग डिस्चार्जिंग, वहीं पे जहाँ पे सारा ये ग्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एवरीवेयर यू विल सी द ग्रेन ऑन द जेटी, जहाँ पे ग्रेन आएगी, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी पोर्ट हो, वहाँ पे ये रैट्स तो रहेंगे। एंड एक बार 1-2 रैट आने चाहिए आपके शिप पे, बस हो गया काम। फिर उनकी ब्रीडिंग जो है, I don't know, have you seen, have any of you faced rats on the ship? नहीं सर, टैंकर पे तो नहीं देखी अभी। टैंकर पे तो नहीं, उसकी तो स्मेल है वही, उसको प्लस टर्मिनल भी जो है दूर ही होता है। अदर शिप्स विच वी गो, अब शिप्स आर गोइंग टू ऑल टाइप ऑफ पोर्ट्स, सारी पोर्ट्स तो नीट एंड क्लीन नहीं है। आई वोंट से यूएस की पोर्ट्स जो जेटीज हैं तो सबसे खराब है। ट्रू सर। एंड आई हैव सीन, सबकी अपनी अपनी बात है। आई वेरी ओपनली टेल यू, आई एम वेरी एलर्जिक टू द रैट, चाहे कितना छोटा सा भी क्यों ना।
एंड हमने देखे हैं, उसको सोना मुश्किल हो जाता है कैबिन में, फीलिंग ही उसकी है कि हाँ यार। अब इसके लिए आई डोंट नो आजकल आप फॉलो करते हो कि हमारे टाइम में तो एक रैट लॉग और ये सारा चीज़ होती थी स्टोर्स में, उसका वो लगा के रखो, उसका लॉग बताओ, बना के रखो। तो ये इसका भी एक सर्वे होता था। चलो, टुडे शिप्स आर बिकमिंग बेटर, कंटेनर्स में इवन कंटेनर शिप्स, कंटेनर्स के होल्ड में यू विल फाइंड रैट्स, तो कंटेनर के साथ आ जाते हैं। सर ये जो सैनिटेशन एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, इसे पहले डी रेटिंग बोलते थे ना? हाँ, डी रेट एग्जम्पशन, यस। जी। उसका भी चीफ सर के लिए कहता हूँ कि मेरे को पुराने दिन याद आ गए कि हाँ वो पूरा सारा लॉग, चाहे राइटिंग तो हम कैसे करते थे, हर हफ्ते दिखाते थे, बट एट द सेम टाइम भूषण वगैरह को बोल देते थे कि ये रैट के जो चूहे के पिंजरे होते हैं कि यस, उनको लगा के रखते भी थे कि चलो चाहे है चाहे नहीं है, फिर भी होता था कि नहीं है, बिकॉज फोरपिक स्टोर एंड ऑल दैट, हमारे शिप के स्टोर्स आर ह्यूज थिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एंड जेटी पे आते कहाँ से हूँ, दे कम फ्रॉम द जेटी, आपकी मूरिंग रोप के ऊपर से आएगा। उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था, सीन सो मेनी टाइम्स मूरिंग रोप्स के ऊपर से आराम से चल के वो बस एक बार शिप पे पहुंचने चाहिए। सो इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल, दैट्स वाई आज के टाइम में देयर इज लॉट ऑफ थ्रस्ट। ये क्लीनिंग, अकोमोडेशन, इंस्पेक्शन, ये किस लिए, इनका पर्पस क्या था, ये है टुमारो वी आर गोइंग टू बिकम चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन। अगर आज आप मेरे को पूछिए, द बिगेस्ट थ्रस्ट इज ओनली ऑन द क्लीनलीनेस, चाहे वो कैबिन हैं, चाहे गैलीज हैं, चाहे स्टोर्स हैं, या अपने प्रोविजन स्टोर्स। प्रोविजन स्टोर्स कॉमन है, ये नहीं कि आज वो हट गए वगैरह। आजकल आपको चांस नहीं है, कभी आप देखना कंटेनर शिप, कंटेनर होल्ड्स में जाना, वो एक बार आ गया कंटेनर के नीचे जेटी में, कंटेनर के नीचे फोकलिफ्ट पॉकेट्स तो होती हैं, या कई बार एम्प्टी कंटेनर्स हम लोड करते हैं। दिस इज व्हाट यू गॉट टू बी केयरफुल। सो इसीलिए था कि डी रेटिंग की जो सिस्टम था या सर्टिफिकेशन थी, इसीलिए थी बिकॉज ऑफ द डिजीज। चलो हमें तो वैसे ही एक, जैसे कहते हैं, इट्स नॉट अ फियर बट इट्स सॉर्ट ऑफ एलर्जी, दैट नहीं यार हम उनसे दूर रहते हैं। चलो सिटीज में भी आजकल हैं, बॉम्बे फुल ऑफ दिस थिंग। तो इसके लिए इसकी जो होल्ड क्लीनिंग है, नाउ डू नॉट टेक इट बिकॉज वी ऑल द टाइम गेट इरिटेटेड, यार ये सर्वे क्या, इसने ये चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है, इसने होल्ड फेल कर दी, इसको पास कर देने चाहिए थे। उनके माइंड में यही चीज चल रही है कि आपके शिप के अंदर ये इंसेक्ट या ये चीज तो नहीं है। क्यों? इट इज वेरी कॉमन, बिकॉज ये फूड ही ऐसा है, ग्रीन चीज ही ऐसी है, it will attract, and this we have seen, this is of course the standard of cleaning is enough। कोई लूज रस्ट नहीं है ताकि वो कार्गो से मिक्स ना हो सके, कुछ उसकी डस्ट भी नहीं है, वो आपने कर दिया उसके बाद लोड कर दीजिए, कुछ नहीं होता, नो हार्म। अब carriage of grain, of course one of the most difficult dangerous cargoes to carry in bulk are grain cargoes। most grain cargoes have an angle of repose for 20 degree, that means if the ship rolls to 20 degree the cargo will shift। तो ये सबसे बड़ी इस कार्गो की प्रॉब्लम थी कि यार उसको हमने कैसे रिस्ट्रेन करना है, कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है। And then Sir, if it is trimmed, then also 20 degree. हाँ जी, if it is, If it is trimmed, yeah, even if it is trimmed and all that, so that time also yes, because the shifting is कि ट्रिम से हम ठीक है, हम कह देते हैं कि हमने अगर उसको लेवल किया है, फिर चांसेस जो है थोड़े से कम है कि 20 नहीं तो 22 या 25 तक जाएगा। बट अगर हमने उसको नॉर्मल हीप में रखा है, सीधी ऐसे हीप है, तो एक कॉमन दिखता है कि यस जो हीप हैज गॉट अ वेरी इजी चांसेस टू शिफ्ट। बट अगर हमने लेवल भी कर दिया है देन ऑल्सो देयर आर चांसेस ऑफ शिफ्टिंग। तो इसलिए बट थोड़े चेक कम है, थोड़ा एंगल ज़्यादा चाहिए होगा। बट 20 डिग्री इज क्वाइट अ बिट ऑफ रोल, सो 20 डिग्री इज नॉट कि शिप इज कंटिन्यूसली रोलिंग 20 डिग्री, तो कुछ भी हो सकता है।
Then this happens, the ship will develop a list lying on her side, and still rolling will obviously cause a greater shift of cargo and can do anything. So most authorities therefore request that the master proves that the ship is capable of remaining stable even if the grain cargo shifts. तो उन्होंने कैलकुलेशन की है, even if your cargo shifts, उससे जो लिस्ट होगी, उसने अभी रिवर्स किया है कि यार अप टू 12 डिग्रीज तक अगर आपका वेसल जो है, इफ शी लिस्ट ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ कार्गो, फिर उसने स्टेबिलिटी कैलकुलेट की है, देन सेज यस शी कैन स्टिल रिमेन स्टेबल, शी कैन इजीली कम बैक and do anything. But more than अगर 12 degree shift, 12 degree list takes place due to the shift of cargo, then it becomes, फिर आपका जो है स्टेबिलिटी में सीरियसली इफेक्ट करता है, तो इसलिए वो कहते हैं नो. तो उसी को उसने रिवर्स हीलिंग मोमेंट्स कैलकुलेट कर दिए जो कि आपके कार्गो को और शिप को 12 डिग्री से ज़्यादा शिफ्ट नहीं होने देगा. दिस इज व्हाट वी कॉल द अलाउएबल हीलिंग मोमेंट्स. वो जो वैल्यू है हीलिंग मोमेंट्स की है वो उतने ही 12 डिग्री तक की है, उससे ज़्यादा शिफ्ट नहीं होने देगा अगर उतने ही हीलिंग मोमेंट्स हैं आपके पास. And this is again done by compiling of grain loading form, which is fully outlines the ship's stability at worst condition, and this cargo is liable to shift. Heavy emphasis placed on the stability of the ships that carry them. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आई डोंट नो मेरे पास तो था कि रखा हुआ पुराना, बट मोस्टली पुराना नया इट इज़ ऑलमोस्ट सेम. सो बेसिकली दे सी ऑल द कैलकुलेशन, योर नॉर्मल स्टेबिलिटी कैलकुलेशन, GM, एंड देन आपके हीलिंग मोमेंट्स जो हैं सब फोल्ड्स के मिला के वो मैक्सिमम कितने आ रहे हैं उस kg पे, उस डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम अलाउड कितने हैं, दैट्स ऑल दे सी. तो ये भी एक नेचुरली कैलकुलेशन इज़ नॉट अ टफ जॉब. इंडिकेटर पे है, सब करके उसको एक प्रिंट आउट दे देते हैं कि लो जी ले जाइए, उसका फॉर्म है तो वो भी भर देते हैं. So this is how basically your grain is loaded with the chutes. आजकल ये थोड़े sophisticated हैं, आप उसको कहीं से भी हाइड्रोलिक करिए, किसी भी एंगल में उसको घुमा सकते हैं. Now this is your typical bulk carrier with wing tanks. अब you can imagine जैसे जैसे कार्गो यहाँ ऊपर आएगा वो कार्गो ऐसे भरता जाएगा, चांस ही नहीं है. अब यहाँ पे अगर छोड़ देता हूँ, इतने लेवल पे अगर छोड़ देता हूँ, सो देन देयर आर चांसेस कि जब शिप रोल करेगा तो कार्गो सारा का सारा साइड में जाना शुरू हो जाएगा. So आजकल these are very good loaders they have that हर कॉर्नर को भर सकते हैं. So this is what they say कि जितना आप उसको मैक्सिमम फिलअप कर सकते हो, चाहे इससे कीजिए. हम इंडिया में तो हम कॉमन था कि वी पुट द पीपल, उसको शवल पकड़ा, उसको बोल ठीक है यार इसको ग्रेन को अंदर करता जाओ और क्या. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड द लेबर इज एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग, एंड मैनुअल वर्क तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है. मशीन चलानी आसान है, बट अगर मैनुअली US या यूरोप में बंदों को डालना है तो लॉट ऑफ मनी टू बी पेड. This is how basically your grain loading is done. चलो थोड़ा ब्रेक ले लें, have a cup of tea. Yes sir. चलो ओके बच्चे, 10:15 पे मिलते हैं. फिर थोड़ा सा देखते हैं इसका और securing, what are the various securing methods and stability requirements. That's the question based. Okay sir. In between and arrival, they are all in good condition and all the paperwork has been completed before. That is, of course, they will do before loading and even on completion of loading, because they take a copy of it. अब थोड़ी सी fumigation requirement भी है. As I was telling you, accidents have taken place, so chartered shippers may require cargo to be fumigated. Now, if this is to be done during the voyage or before or after loading, full clear instruction should be received from the charterers and shippers, and we have to be guided accordingly if they have fumigated or if they won't. Normally fumigation, if you see this, I will take up this also fumigation that separately, that if the fumigation of cargo is done, first of all it is to be done by the shore people, by the experts, and उसके लिए about the safety advice, application dangers, method of handling, requirements of personal protective equipment and monitoring equipment.
तो ये आज के टाइम it is very important as a chief officer that yes, the cargo is fumigated or not. We can definitely discuss this before. And are you going to do any fumigation, or you are going to do normally fumigation? Can they keep these tablets? Bromine, phosphine, small sachets are there. They put it into the cargo, and these tablets, when they mix with the moisture, they start giving off the gas phosphine or bromine, which is very dangerous gas. So ठीक है, कार्गो को तो सेफ रखती है, no insect formation takes place, no infestation, but it is very lethal. By mistake, if somebody enters, it won't give you chance. So इसके लिए when fumigation is done, you should be totally aware, and then you take all the precautions whatever are recommended. That safe use of pesticides, always carry risk assessment, all these things. Qualified fumigator to be engaged, and all spaces should be padlocked and sealed to prevent anyone from entering the space. जैसे मैंने बताया आपको कि yes, past में long time back, when these things were not so much, there were 2 or 3 two ABs, and even including captain died. South Cisco का ship था, South India Steamship Company, and they were bringing wheat. So वही था normal procedure कि यार 1-2 दिन पहले we just want to see before arriving that everything is okay, कोई damage तो नहीं है, कोई पानी तो नहीं गया. They could not open the hatches, but they tried to go through the booby hatch. बोसन था, he took one AB कि चलो मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, तुम नजर मारो नीचे, सब ठीक है. But the AB goes and he doesn't come up. So bosun is calling, but then the bosun realized something has gone wrong. So he calls another AB. तो उसको बोलता है अच्छा तुम ऊपर खड़े हो, मैं जरा जाके देखता हूँ. AB नीचे गया तो आया नहीं. So the AB tells, you stay still on top, I will go. So this guy also doesn't return. And then the bosun panics. So in the meantime, this thing was being watched by the captain from the bridge. So he comes down running, and then he says कि okay bosun आप खड़े हो, मैं जाके देखता. Imagine the things. And captain also goes, and naturally the cargo was fumigated with these bromine or phosphine. And then the bosun halfway goes, and he found something is wrong, and he saw all 3 fellows lying on the dead on the cargo. Luckily he came back. 2 steps नीचे गया था, he immediately came up. So इसके लिए these instructions, of course nowadays though, they will put a notices also, they will give you certificate, and they will instruct you that कैसे आपने इसकी padlocking कैसे अपने करना है, and ventilation, and before opening, before discharge port पे again chemist will come and he will see that recommended expert chemist declares whether the space is safe to enter or not, discharge port पे. So these are the few precautions that we have to keep it in mind in case the cargo needs to be fumigated during the transit. And sometimes it happens that your holds fail. That time also some insects are seen in Australia, very common. Then they have to put the whole crew in the hotel. That time also they do the fumigation of the entire vessel. So that is expensive for the ship owner. 3-4 days, all people staying in hotel. Now, master officers must be aware of now fuel oil tank precautions. All cargoes, hold में भी हमने देखा, yes, that hot bulkheads, keep the cargo away from hot bulkheads, and especially for fuel tanks, that we should not heat up the fuel to high temperature where it's going to spoil the cargo. So again, a good liaison between chief officer, chief engineer, but this is the situation. So please make sure that you monitor the temperatures of your oil and heat up only whatever is required, not to keep the steam open and spoil this. Now comes the stability criteria. Again, now stability criteria, ये भी common question है, with DOA and without DOA. Now the angle of heel due to assumed shift of grain shall not be greater than 12 degrees. This is the first aim, ambition of the stability. की ship should have so much stability that even if the grain shifts and there's a vessel likely to lift by 12 degrees, she should be absolutely, the stability requirement should be fulfilled.
Statical stability diagram, net residual area between the heeling arm curve and the writing arm curve up to angle of heel or maximum difference between these two angles should not be less than 0.075 मीटर रेडियंस। तो ये तो आप सिम्पसन रूल आप करते हो, उसमें आपने पढ़ा होगा हाउ टू कैलकुलेट द एरिया। अदरवाइज lodicators are equipped, they calculate and they let you know criteria is satisfied or not, but examination के लिए तो yes, you have studied, you will be doing this area under the curves how to calculate. And third, initial metacentric height after correction for free surface should not be less than 0.3 meter. Now you can imagine 0.3 meter GM is of course very less, so they say it should not be less than that. Of course, normally we have 1 meter 80-90 centimeter, very common even for medium sized bulk carriers. It's good enough, 1 meter is good enough GM. And before loading bulk grain, master shall, if so required by the contracting government of the country of port of loading, to demonstrate the ability of the ship at all stages of any voyage. How you show? Again, calculation. They give you the form, they have these forms of that country. Of course, nowadays everything we can download, fill up, keep it ready and show it to these guys. Yes, the ship will comply with the regulations whereas the stability is concerned. And of course, ship is upright before proceeding to sea. तो ये अगर आप डायग्राम बना के दिखा सकते हो, much better that when this question comes, please make a neat diagram. Sometime I have seen in the past people make maybe running short of time with rough running sketch which looks very shabby. So not a difficult diagram, so very easy, but थोड़ा सा स्केल रख के उसकी लाइन सीधी है, जितनी नीटनेस से बना सकते हो, it impresses or makes your answer very impressive. अब second question, stability requirements for a ship without DOA. Again, most likely those ships not having grain loading booklet and heeling moment information. In such cases, the weight of the grain loaded cannot exceed 1/3 of the dead weight. Now, this rule does not apply to ships built before 1980. I don't think there will be any ships today of 1980 model. Existing ships which can load grain without any limitation on weight but must comply with other requirements. तो वहाँ पे restriction नहीं है, दूसरी requirements आ जाएंगी, securing की requirements आ जाएंगी. So many things are there. And all grain surfaces in filled compartments must be restrained by centerline division, extending to the full length of the compartment from underside of deck hatch covers to a distance below the deck line or at least 1/8 of the maximum breadth of the compartment or 2.4 meter, whichever is greater. So centerline division, again it used to be a rigging story, tough job, but lot of manpower was there on the ship. So you can rig up the centerline division from forward to aft in a compartment that is like a longitudinal division, and उसकी height 1/8 of the maximum breadth or 2.4 meter, whichever is greater. Alternatively, saucering or bundling may be used. Again, basically the securing of the grain surfaces, whatever method you want to apply, either centerline bulkhead, all grain surfaces in filled compartments by centerline bulkhead, or saucering and bundling. And if you have a partly filled compartment, then again compartment must be trimmed, secured by overstowing, strapping or lashing. Now these are the lashing methods of grain surfaces. Now certain methods are applied for filled compartments and certain are applicable for partly filled compartments. So now very clearly he has written in the code that whatever type of compartment you have, you can choose any method. Idea is that the surface should be secure, the grain surfaces should be secure. All hatch covers, twin decks. So please, when you have this question, ये भी कई बार almost 12 marks का question आ जाता है. How do you prepare the holds or stability requirements for ships without DOA? With DOA तो 3-4 points. Without DOA, please try to write all the points. Sometime I have seen we just write that the master should be able to show that he can comply with the requirements in the code. So that is not sufficient. So ये सारे points आप देख रहे हो
that all the grain surface is first of all 1/3 of the dead weight. Grain surfaces should be sustained by centerline division or by this saucering bundling method, and partly filled compartments again by these methods, and hatch covers or twin decks must be placed and battened down, and throughout the voyage GM should be 0.3 or given by this formula whichever is greater. So इसको अगर आप याद कर सकते हो, again very nice that GM should not be less than 0.3 or whatever is calculated by this. सर ये ऊपर क्या न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है? GM is L into B into VD 0.25 under root, yeah, under root VD into B. ओके So L into B into this is the calculated average voyage depth that आपके पास voids हैं. Average void depth is आपके ships में voids हैं, like if you have 2 compartments partly filled, so you उनकी average depth जो है हो सकता है 1 meter 2 meter, जितनी भी average आती दोनों की. Rest I think is given everything, displacement, length, breadth, stowage factor, and not so difficult to remember, but अगर आप लिख सकते हो nothing like it कि सर without DOA we can load, very common, can you load ship grain without DOA? Yes, provided all these conditions are to be complied with. अब लास्ट आपका आ गया ग्रेन लैशिंग मेथड्स कि ये भी वेरी फास्ट पेपर्स में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस आर रिपीटेड वेरी फ्रीक्वेंटली कि व्हाट आर द वेरियस ग्रेन लैशिंग मेथड्स. तो इनकी आप लिस्ट लिख सकते हो. शिफ्टिंग बोर्ड, ओवरस्टोइंग, स्ट्रैपिंग, लैशिंग, बंडलिंग, सॉसरिंग, फीडर्स, स्क्योरिंग विद वायर mesh. And normally you don't have to explain all of them, not possible. They will ask you that explain 1 or 2 of them, maximum is explain 1 or 2. तो उसके लिए भी आपके पास whatever you feel better, या this is F and P means filled plus partly filled दोनों. अगर आपका compartment is filled और partly filled, ये वाला मेथड दोनों बोल्ट्स में लगता है. सेम ओवरस्टोइंग फील्ड पार्टली फील्ड दोनों में आप कर सकते हो. एंड स्ट्रैपिंग एंड लैशिंग ऑल्सो दोनों, इफ द होल्ड्स आर हाफ फुल और फुल. बट ये वाले जो हैं दीज आर ओनली फॉर फील्ड कंपार्टमेंट्स. बंडलिंग, सॉसरिंग एंड फीडर्स अगेन ओनली फॉर फील्ड कंपार्टमेंट्स. सो जो भी आपको अच्छी तरह से आता है, विच एवर यू कैन मेक इजीली सेविंग द टाइम, तो यू कैन डिस्क्राइब एटलीस्ट 1 और 2 मेथड्स तो जरूर इसके पढ़ लीजिए. अब सबसे पहले आपका जैसे कहता है शिफ्टिंग बोर्ड्स. दिस इज एप्लीकेबल फॉर फील्ड एंड पार्टली फील्ड दोनों में. सो शिफ्टिंग बोर्ड्स बेसिकली है क्या, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स आफ्ट बल्कहेड से लेके फॉरवर्ड. अगेन इफ यू इमेजिन योर ट्विन डेक होल्ड, उस पे विद नट्स एंड बोल्ट्स राइट फ्रॉम आफ्ट टू फॉरवर्ड सेंट्रल लाइन डिवीजन देना आपने, which is called shifting boards, which must be grain tight, fitted with both filled and partly filled compartments, and they must extend downwards from the underside of deck or hatch covers to a distance. वो आपको distance उसने दे दिया at least 0.6 meter below the surface of grain after it has been assumed to shift for 1/8 of the breadth. इसकी sketch is very simple. 1/8 of the breadth above and below the level, and if the compartment is filled up, then again 1/8 of the breadth or 0.6 meter below the or above the surface of grain if it is after shifting कितना है. So shifting boards of course पुराने जमाने का है. Nowadays nobody not required, but एग्जाम में लिखने के लिए as per the code sketch बना सकते हो and थोड़ा सा लिख सकते हो. Overstowing सबसे easiest, as I discussed before, that with the bags, and वही कार्गो मैं बैग्स में भर देता हूँ and then I load these bags. and उनका भी थोड़ी सी specification है that for partly filled compartments topped off by loading bagged grain or other suitable cargo and surface to level off over and spread with separation cloth or wooden boards. कि आपने इसको level को separate कर दिया, I mean level कर दिया grain cargo को, you can put dunnage or tarpaulin or anything if required, otherwise just with the filled bags. तो उससे क्या है, लेवल मेंटेन रहता है, यानी कि पूरे के पूरे बैग्स एक तरफ नीचे चले गए, नो. सो वुडन बोर्ड्स ओवरस्टोर्ड विद साउंड फुल्ड बैग्स
to a height of 1/16 of the maximum breadth of the free grain surface or 1.2 meter. Again condition है, bags shall be carried in sound bags which shall be well filled and securely closed. Now this method looks like this. आपका cargo hold complete from port to starboard 1/16 of this or 1.2 meter. So आपके बैग जो हैं 2 या 3 लेयर जितनी भी आती हैं, now this cannot allow, and यहाँ पे आप वुडन डनेज डाल सकते हो so that आपका कार्गो लेवल भी रहेगा, and if it settles let the bags also go down. तो किसी स्टेज में bags are from port to starboard will not allow the bags तो शिफ्ट होंगे नहीं, नेचुरली कार्गो भी नहीं शिफ्ट हो सकता, चाहे थोड़े बहुत may not look like absolutely straight line, कोई बात नहीं, तब क्या होगा थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ, but it will not allow the cargo to shift. So this is the best simplest method. Only remember this 1/16 of breadth or 1.2. Saucering. Now this is again for the fill trimmed compartment. Saucering is again for reducing the heeling moment. This may be, it's like you form the saucer and then fill up with the bags. Saucer and hatchway above is completely filled with the bagged grain or other suitable cargo laid down. वो पार्टली फिल्ड के लिए था बैग्ड, सो सॉसरिंग इज अगेन फॉर द फिल्ड वन. वो जो हमने ओवर स्टोइंग की है दैट इज इफ माय कंपार्टमेंट इज पार्टली फिल्ड, एंड दिस सॉसरिंग इज फॉर द फिल्ड कंपार्टमेंट कि यू लोड द ग्रेन, मेक द सरफेस लिटिल कॉन्केव लाइक दिस व्हेन यू आर टॉपिंग अप. ये आपका बेसिकली कोमिंग्स आ गई जो आपको दिखती हैं हैच के अंदर, कोमिंग प्लेट्स इनसाइड द हैच, यू कैन सी दिस, एंड देन यू lay the bags like this combing to combing and आपका ऊपर hatch cover. Now this is again used to be a cumbersome method, expensive, labor oriented, filling up bags, stitching and then loading. So इसी का उन्होंने bundling जो था उसी की रिफॉर्मेशन की है. Why fill up, कि अगर आपको ये एक sort of saucer type भी बनाना है, why not fill up the loose grain, bulk grain also. नीचे उन्होंने tarpaulins डनेज रख के एंड रोप या वायर से वापस इस टारपोलिन को बांध दीजिए. सो दिस बिकम्स द ह्यूज, ऑल कंप्लीट थिंग बिकम्स वन बंडल. सो सॉसरिंग एंड बंडलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्सेप्ट यहाँ पे हम बैग्स रख रहे हैं. बंडलिंग में भी फिल अप द बल्क ग्रेन आफ्टर पुटिंग द सेपरेशन क्लॉथ और द बिग टारपोलिन्स, और उसको हम वापस लेके बंद कर देते हैं सो दैट द कार्गो डजंट गो एनीवेयर. तो ये आपके फील्ड कंपार्टमेंट्स के लिए है. यस, इन केस प्लीज रीड द क्वेश्चन कि इफ ही इज आस्क्ड स्पेशली दैट राइट 1 or 2 मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर फील्ड कंपार्टमेंट्स और पार्टली फील्ड कंपार्टमेंट, कहीं बार हो उसको आगे और जिसे कहते हैं फर्दर सब डिवाइड कर देते. तो आपको थोड़ा सा याद रखना है विच मेथड इज फॉर फील्ड कंपार्टमेंट्स एंड विच मेथड इज फॉर पार्टली फील्ड कंपार्टमेंट. Depth of saucer from the bottom of the saucer to the deck line shall be for ship having molded breadth up to 9.1 meter, not less than 1.2 and 1.8. So ये जो आपकी depth है this should be 1.2 or 1.8 as per the breadth of the ships. सर हाँ जी सर वो डायग्राम में बताइएगा कौन सी डेप्थ बता रहे थे आप, 1.2 1.8? या यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डेप्थ है मैक्सिमम डेप्थ. सर ये सॉसरिंग आपने कैसे करी सर? ये मतलब ये अंदर छेद कैसे मतलब बनाया, मतलब ये नीचे या ये देखिए ये आप कैन यू इमेजिन दिस, ये जो ब्लू वाला है दिस इज द आपकी कोमिंग प्लेट है. कैन यू इमेजिन? चलो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे लोडिंग का वो दिखाया था, हम जहाँ पे लोडिंग कर रहे थे ना, या ये वाली प्लेट्स ये होती है ना कोमिंग प्लेट आपकी. दिस इज फॉर एंड अप, दिस इज द आफ्ट, दिस इज द फॉरवर्ड, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड, इजंट इट? सो ये पोर्ट एंड स्टारबोर्ड में ये कोमिंग प्लेट ऐसे आ जाती है नीचे. सो मैंने यहाँ तक कार्गो को भरना है, यहाँ से मैंने उसको थोड़ी शेप दे दी. अब आप जो बैग स्टो कर रहे हो वो पूरे के पूरे इस कोमिंग को टच करेंगे, ये चारों तरफ जो कोमिंग प्लेट दिख रही है आपके पास इसको टच करेंगे. एंड यहाँ से मैंने जो डेप्थ है वो यहाँ से 1.2 और 1. आपका कार्गो तो पूरा भरा हुआ है यहाँ तक,
isn't it? एंड यहाँ से मैं इस कार्गो को थोड़ी ऐसी शेप देता हूँ, यहाँ तक आपने किया, इसको आपने ऐसी कॉन्केव शेप देके यहाँ पे आपने पूरा का पूरा ये सॉसरिंग बना दी। यहाँ मैंने पूरा बैग से भर दिया। अब हमने बैग से इतना भरना है 1.2 दे रहा है कि अगर कार्गो सेटल भी होता है तो ये नहीं है कि बैग इससे नीचे नहीं जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक आपने भरा है जहाँ तक आपके हैच कवर्स ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। हैच कवर्स बंद होते हैं तो मैं यहाँ तक इसको बैग कार्गो से भर देता हूँ। कार्गो शिफ्ट भी होगा तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए। अब स्टिल इमेजिन कि पूरे अपने बैग्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भरे हैं, सो नथिंग कैन हैपन। बैग्स तो शिफ्ट होंगे नहीं बिकॉज कोमिंग प्लेट के अगेंस्ट रेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज फॉर जनरल कार्गो टाइप ऑफ शिप थे जिनमें कि कार्गो के चांसेस हैं कि पोर्ट टू स्टारबोर्ड रोलिंग हुई तो पूरा कार्गो इधर चला जाएगा। आई होप अंडरस्टूड। यस। तो ये चीज उसने यहाँ पे दिखाई है। या ये शिफ्टिंग बोर्ड्स ओवर स्टोइंग एंड सॉसरिंग के लिए ये आपकी प्लेट है। ये देखो यहाँ तक ले गया अंडर साइड द हैच कवर्स। एंड यहाँ से वो कह रहा है कि यस फॉर शिप्स हैविंग द डेप्थ ऑफ द सॉसर फ्रॉम द बॉटम ऑफ सॉसर टू द डेक लाइन 1.8 2 मीटर कुछ भी नहीं है तो बड़ा दिख रहा है। तो फाइनली उस फिगर में आपको दिखता था यस कि यहाँ से यहाँ तक ही मैंने यहाँ तक तो कार्गो आ रहा है, यहाँ से मैंने उसको शेप दे दी कार्गो को, उसके ऊपर बैग कार्गो डाल दिया और बैग जो है दे आर रेस्टिंग अगेंस्ट दिस फोमिंग प्लेट, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। शिप को कितना भी रोल होने दीजिए, these bags are again loaded and they will get restrained by these plates। सेटल होंगे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, that's all। तो ये थोड़ी सी हाइट्स कि यहाँ यार इमेजिन 9.1 मीटर शिप तो छोटी बार्जीज ही होती हैं आज के टाइम में। when you have the ship's breadth is equal to 30-40 meter। strapping and lashing another method, again this is in partly filled compartment, strapping और lashing is utilized। अब इसमें क्या था, securing shall be accomplished as follow। अब कैसे इसमें करना है, grain shall be trimmed level off to the extent that is very and is slightly crowned। अगर आप इसका स्केच देखिए वेरी सिंपल यू कैन मेक। अब हम क्या कर, इसमें क्या करना है आपको, पहले से ही लैशिंग वायर जो है ये आपके बल्कहेड्स हैं, यहाँ पे आईज वेल्डेड होती हैं डिफरेंट लेवल्स पे। सो यू अप्रॉक्सीमेटली नो कि आपका कार को कहाँ तक आने वाला है, कितने मीटर तक। तो अगर सपोज यहाँ तक आने वाला है तो मैं ये जो वायर्स हैं इनको पहले ही नीचे शैकल कर दूंगा विद दिस आईज ऑन द बल्कहेड। यानी ये वायर्स को मैं शैकल करके या ऊपर पकड़ के रख लेता हूँ। एंड देन इसका जो सरफेस है वहाँ पे हम नीचे कर रहे थे, इसको थोड़ा सा आपने क्राउनिंग करना है, थोड़ा सा सरफेस जो है नॉर्मल जैसे क्राउन सरफेस ऊपर को रखते हैं। एंड देन इसके अंदर आपने ये वायर्स तो आपने बांध दी हैं, उनकी भी डेप्थ आई थिंक 2.4 मीटर के गैप पे आपने ये वायर्स राइट फ्रॉम आफ्ट टू फॉरवर्ड या फॉरवर्ड टू आफ्ट आप जहाँ पे भी होल्ड में ट्विन डेक पे कर रहे हो। एंड देन यू हैव दिस बियरर बोर्ड। बियरर बोर्ड इज बेसिकली डनेज 25 mm 150 mm की जो है चौड़ाई, 25 mm की विड्थ एंड 150 mm की लंबाई। दिस इज बेसिकली द डनेज। इसके नीचे आपने डनेज एंड टॉर्पलिन। तो पहले आपने टॉर्पलिन लगा दी, टॉर्पलिन बिछाई, उसके ऊपर आपने डनेज रख दी। एंड देन यही वाली वायर जब कंप्लीट हुई, ये दोनों वायर्स को आपस में टर्न बकल से ज्वाइन कर दी। अब अगर ये जो आपका है बेसिकली इफ यू सी, ये देखो एक वायर ऐसे आएगी, ये आगे से पीछे 2.4 मीटर की गैप पे आप वायर्स, दिस इज द आफ्ट बल्कहेड एंड इमेजिन दिस इज द ट्विन डेक एरिया। तो मैं इसी तरह से वायर जो हैं 2.4 मीटर के गैप पे लगाता जाऊंगा। हो सकता है आपके पास 8-6 वायर 6-8 वायर्स लग जाएं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, आगे आगे आते जाओगे। एंड यहाँ पे बीच में मैंने उसके जस्ट द टॉर्पलिन एंड डनेज, ताकि ये वायर्स कटे, उसको काटे ना टॉर्पलिन को। सर ये वाला जो मेथड है वो केवल ट्विन डेक्स में यूज करना है कि नॉर्मल में भी कर सकते हैं?
ये strapping lashing Yeah, this is for partly filled compartments. partly filled compartment. Okay sir. अभी इमेजिन कीजिए, चाहे मेरा जनरल कार्गो शिप है, कई बार हम कहते हैं चल ट्विन डेक्स को आप खुला रखो, ओपन रख दीजिए, ऊपर से लेके कंप्लीट नीचे तक लोड कर लीजिए। तो ये आपका टैंक टॉप आ गया, ऊपर मैंने क्राउन सरफेस ऐसे बना दिया। और अगर आपका एक ही होल्ड है, सपोज इसमें भी छोटे छोटे शिप्स हैं, जैसे इमेजिन कीजिए स्मॉल शिप्स हैं, हो सकता है उस पर ट्विन डेक नहीं है, तब भी हमने इसका, दिस इज बेसिकली फॉर पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट। एंड इसकी डिटेल कैसे कैसे करना है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। आपने अगर समझ लिया है तो यस, नाउ इफ यू सी, वो कहता है कि सेपरेशन क्लॉथ टॉर्पलिन शैल ओवरलैप बाय वन, ठीक है, एक पीस तो मिलेगा नहीं, वो तो उसको आपने टॉर्पलिन के पीसी ने उसको ओवरलैप करने का भी रखा हुआ है। 2 सॉलिड फ्लोर्स मीन्स डनेज ऑफ इतने टू बी लेड अथॉट शिप फर्स्ट टीयर एंड फोर एंड आफ्ट सेकेंड टीयर। अब उसने डनेज भी लगा दी, फोर एंड आफ्ट, लैश्ड विद डबल स्टील स्ट्रैपिंग वायर्स with ends at a point approximately 450 मीटर below the grain surface। तो ये वायर्स तो हमने पहले लगाई है 19 mm की। अब ड्यूरिंग द वॉयज होगा क्या, कार्गो सेटल करेगा तो ये वायर स्लैक हो जाएंगी, isn't it? हमने क्या करना है ड्यूरिंग द वॉयज, आपको यही चेक करना है, लाइक लैशिंग, इन वायर्स को टाइट करते रहिए। एंड इसीलिए हमने इसको नीचे से लिया इनफ that you have taken 450 millimeter below। so इतना नहीं कि आपको स्केल से नापना है, बट अगेन वी कैन अंदाजे से, जहाँ पे आपका आई बनी हुई है थोड़ा नीचे भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट इज गोइंग टू टाइटन द होल सरफेस लाइक दिस। ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन जो है, ऑफ कोर्स इन माय ओपिनियन, इफ यू आस्क मी, दे शुड नॉट आस्क स्पेसिफिकेशन सर कोड में दी है उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे, इजंट इट? बट एटलीस्ट थोड़ा सा कि हाँ, टर्न बकल 32 mm, 19 mm की स्टील वायर, एंड बीरर बोर्ड या जिसे डनेज कहते हैं 25 mm बाय 150। सो 2-4 चीज़ें भी आपने लिख दी तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव बन जाता है कि हाँ यार बंदे ने ये स्पेसिफिकेशन कोड में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी पढ़ ली हुई है। तो दिस इज द होल डिटेल, 2.4 मीटर अपार्ट। एंड आपका दूसरा मेथड जो है सिक्योरिंग पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट विद वायर मैश। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे भी हुई है कि डनेज रखी, टॉर्पलिन के बजाय आपने वायर मैश, वो एक पीस तो मिलेगा नहीं, तो आप उसको ओवरलैप कर सकते हो, चाहे छोटे छोटे पीसेस हैं, एक पीस लगाया उसके ऊपर दूसरा, एंड ये वायर नीचे से आ रही है। स्ट्रैपिंग विद वायर मैश ऑल्सो इज सेम थिंग, नीचे से वायर आ रही है, यहाँ पे एक आपने बीरर बोर्ड जिसे हम थिक डनेज कहते हैं यहाँ पे रखते हैं, इस तरफ भी थिक डनेज, जहाँ से वायर्स पास हो रही हैं उसके नीचे भी डनेज रखते। तो इफ यू आर गुड इन 3 डायमेंशनल ड्राइंग ऐसा भी बना सकते हो, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वन स्ट्रैपिंग एंड लैशिंग के लिए एंड विद द वायर मैश के लिए। Grain slightly crowned, 1 layer of burlap or canvas tarpaulin, 2 layers of wire mesh, 50 mm by 150 lumber bearers against frames or shell to distribute the downward thrust, and 2 layers of tonnage directly beneath the wire ropes, and steel wire of 19 mm spaced 2.4 meter maximum attached to framing 450 meter below। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, तो आई थिंक we can easily remember यार ये काम हमने करना है। फर्स्ट एंड लास्ट ट्रांसफर स्लैशिंग्स टू बी क्लोज टू फॉरवर्ड एंड आफ्ट बल्कहेड्स। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, तो एक लास्ट वायर जो है इस बल्कहेड के नज़दीक, एक वायर इसके नज़दीक, बीच में 2.4 के गैप पे ये वायर्स में अपनी ट्विन डेक या लोअर होल्ड पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट्स में लगाता चला जाऊँ। बंडलिंग ऑल्सो इफ यू सी इट इज, जैसे मैंने आपको बताया सॉसरिंग का एक अनदर है कि इंस्टेड ऑफ फिलिंग दिस विद बंडलिंग बिकॉज मेकिंग अ बंडल बिकॉज दे फाउंड यार ये बैग भरना कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, सो दे से व्हाई नॉट डू दिस कि ठीक है उसी चीज़ को जैसे हम सॉसरिंग थे उसी तरह से इसको क्राउनिंग किया नीचे की तरफ एंड देन फिल अप विद द बल्क ग्रेन, एंड एक सॉर्ट ऑफ पूरे ग्रेन का बंडल बना दिया, ह्यूज बंडल
inside your twin deck, ताकि आपका बाकी का जो ग्रेन है उसको शिफ्ट होने से हम रोक सकें। टनेज, लैशिंग्स, एंड बाद में हम इसको वापस ऊपर बांध सकते हैं। चलो, ये तो आपके सारे वेरियस लैशिंग मेथड्स, और नॉट अ डिफिकल्ट आंसर, आई मीन नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपने चाहे बल्क कैरियर नहीं भी किया तब भी एटलीस्ट यू शुड हैव अ फेंट आइडिया कि अगर मेरे को ग्रेन कैरी करनी है, सिक्योर करनी है, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। कोड क्लीनिंग, आई थिंक ऑल ऑफ यू एम वेरी श्योर, नो नीड। आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो 10-12 पॉइंट्स आराम से कि होल्ड क्लीनिंग में क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, बिल्जेस, नो फाउल स्मेल एंड नो इन्फेस्टेशन, क्लीनलीनेस, ग्रेन क्लीन स्टैंडर्ड, लूज रस्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। एंड स्टेबिलिटी कैलकुलेशन यू हैव सीन। इवन अगर इफ़ यू गो टू ओरल्स, वहाँ पे भी अगर आपको इसके बारे में पूछते कि सर ये रिक्वायरमेंट है, ग्रेन लोडिंग मैनुअल जो है होना चाहिए, ग्रेन लोडिंग मैनुअल में क्या दिया है, ये होना चाहिए, एंड वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट्स क्या हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, चाहे आपने लोड नहीं भी किया। तो जो बल्क कैरियर पे काम कर रहे हैं, एक बार लोड करोगे, चाहे यू गो एज अ फर्स्ट टाइम ची वॉशर, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आपने ये पढ़ लिया इतना, इफ़ यू गो टू द बुक, लोडिंग मैनुअल खोलोगे, स्टेबिलिटी बुकलेट में जैसे कंडीशन दी है, इट इज़ वेरी इजी। यही चीज़ है वहाँ पे कि यही प्रिकॉशंस आपने वहाँ पे लेनी है, या ग्रेन को पूरा फिल अप करना है। एंड मोस्टली दोज पीपल नो जिनका डेली दे आर लोडिंग सो मेनी शिप्स, इजंट इट, सो दे ऑल्सो नो। आपको उसको गाइड करने की जरूरत ही नहीं, दे नो या कैसे कैसे बनना, प्लस दे आर इक्विप्ड। लोडिंग डिस्चार्जिंग, अगर आज आप मेरे को पूछिए आफ्टर लोडिंग ग्रेन, ऐसे यार कोई इतना सीरियस कार्गो नहीं है। ओनली फ्यू प्रिकॉशन जहाँ पे आपने ध्यान देना, बिकॉज नोबडी एल्स विल बॉदर अबाउट दैट। लोडिंग डिस्चार्जिंग रियली आई एम टेलिंग यू डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। हमने तो डिस्चार्जिंग की हुई है व्हेन देयर वाज अ गल्फ वॉर, 82 फर्स्ट व्हेन द वॉर स्टार्टेड, बंदर खोमैनी में। डे टाइम नो वर्क, रात को वो लगा देते थे एक्सट्रैक्शन, दैट शूट टाइप लगाते थे सक्शन से, कंप्लीट डार्कनेस एंड ग्रेन डिस्चार्ज हो रही। लोडिंग भी अगेन ऑस्ट्रेलिया भी लोडेड, और बंदर खोमैनी एकदम गल्फ के एंड में। Only thing you got to be careful is that your hold cleanliness, no leakage, bilges का that suctions good, no backflow कि यानी कि नॉन रिटर्न वॉल नहीं काम करते, पानी नहीं आना चाहिए। सेकेंड थिंग इज द हैच कवर्स। हैच कवर्स मैंने मॉड्यूल 1 में कवर किए हैं, अक्टूबर बैच जो आएगा वी विल बी कवरिंग आफ्टर मॉड्यूल 3 व्हेन वी कम टू मॉड्यूल 1, वहाँ पे हम हैच कवर्स पढ़ेंगे। हैच कवर्स तो बच्चे ऑल द कार्गो के लिए, जितनी अटेंशन आप पे कर सकते हो। ऑफ कोर्स फॉर कंटेनर्स वी आर लिटिल लेस बॉदर्ड, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत पानी गया भी तो कार्गो इज नॉट गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड एंड वी कैन इजीली पंप आउट। बट अदर कार्गोस स्पेशली बल्क के लिए तो हैच कवर्स की जो वेदर टाइटनेस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कार्गो गेट्स डैमेज, पूरी वॉइस बैठ गया, लेटर्स आंसर करते रहो हाउ व्हेन कब किया था। तो ये थोड़ा सा आपको सीक्वेंस जो है इसमें फॉलो करना है। स्टेबिलिटी कैलकुलेशन इज आल्सो नॉट एट ऑल डिफिकल्ट प्रैक्टिकली, मैंने आपको बता दिया जैसा कि लोडिकेटर में भी है, किनारा वालों के फॉर्म भरने हैं, डेटा वहीं से उठा के आपने उनके फॉर्म में डालना है, एवरीथिंग इज गिवन। हो सकता है सम पोर्ट्स तो आजकल लोग प्रिंट आउट भी एक्सेप्ट कर लें, ये लोग प्रिंट आउट दे दो उसको सारा पेंडिंग मोमेंट शेयरिंग फोर्स, ये लो भैया ले जाइए जो भी चाहिए आपको, volumetric healing moments. So they are also bothered that they don't want the ships to, they want ships to go safely. That is the whole idea. And मैंने देखा हो a lot of time, I think Canada on they are very, they trust you and they believe yes
that you are professionals. Even so, those people do not, and they are not like MMD surveyors. They want to see, no. They fully trust you that you are professional. You know your job. The first thing they have in their mind that you know your job. तो इसलिए थोड़ी neatness and उनके साथ behavior, and therefore whatever they are doing is for our good है. बाई चांस अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो ही विल पॉइंट आउट कि चीफ ये ठीक नहीं आ रहा, या जो भी कैलकुलेशन है वो ठीक नहीं आ रही. मच बेटर. फियर नहीं करना, बिकॉज हमारा नॉर्मल होता है एनी इंस्पेक्टर, एनी इंस्पेक्शन, एनी सर्वेयर कमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जिसे कहते हैं ना फियर साइकोसिस के अंदर नहीं काम करना आपने. यानी कॉन्फिडेंस आपको, ऑफ कोर्स लेट मी बी वेरी फ्री. अटेंडेंस लेके कर रही हूँ. अच्छा, अटेंडेंस लेके आ रही हूँ. तो आज के लिए we have this much, and tomorrow I hope all of you have this ASTM tables with you. चल कल तो ASTM नहीं शुरू करेंगे. I will like to start from the, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूंगा बिगनिंग से. I know you have done this 10 numericals in your what you call the second